دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی پاکستانی آموں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ پاکستانی آم گلیوں بازاروں میں پہنچ چکا ہے، جہاں پاکستانیوں کے علاوہ مقامی افراد بھی اسے ذوق و شوق سے خرید رہے ہیں۔ تفصیلات عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ گرمی کا موسم اپنے جوبن پر پہنچ جائے اور پھلوں کا بادشاہ آم مارکیٹ میں نظر نہ آئے، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک میں پاکستانی آم کی مانگ دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ دوسرے ملکوں کے آموں کی نسبت زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ برمنگھم کی گلیوں اور بازاروں میں بھی پاکستانی آم کی دھوم ہے، جہاں سمندر پار پاکستانیوں سمیت دیگر افراد بھی اسے خریدنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت پاکستان آم کی برطانیہ اور یورپ میں صحیح طریقے سے برآمدات کی پالیسی بنائے، پاکستانی تاجروں کو سہولیات فراہم کرے اور درست وقت پر فروخت کیا جائے تو یقیناً پاکستان کا زر مبادلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں کا لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو بہت دور دور سے ادھر ہی آتے ہیں، دوسرا ٹاؤنوں سے بھی ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ That's the best mango. Pakistani mango, very honey mango. It's very sweet. Everybody want this one. They like honey mango. ہمارا مینگو پاکستان سے جب بھی آتا ہے لوگ سالوں سال انتظار کرتے تھے، لیڈ سے، یوگ سے، دور دور سے لوگ آ کے میرے مینگو یہاں پہ خریدنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکستانی مینگو کب آئے گا۔ ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، آ کے پوچھتے ہیں پہلے پاکستانی مینگو ہے، ہم کہتے ہیں پاکستانی مینگو ہے، تو پھر اس کے بعد آگے وہ چوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا میٹھا مینگو ہے، ایک سال بعد آتا ہے۔ پاکستانی مینگو کی ماشاءاللہ ڈیمانڈ اتنی ہے، جو بھی آتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو بھی آتا ہے پاکستانی مینگو کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں یہاں سے ایوری ڈے 1 باکس یا 2 باکس بڑے لے کے جاتا ہوں، اور اپنے جو رشتہ دار اور فرینڈ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی آم بہت اچھا ہے، جاؤ اور لے کے آؤ، اور میں جو خاص فرینڈ ہوتے ہیں ان کو بائی کر کے بھی گفٹ کے طور پر دیتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ پاکستانی آم کی دنیا میں بہت قدر ہے، اس لیے کوالٹی بھی اچھی ہے اور میٹھے آم ہوتے ہیں۔ سروے کے مطابق گزشتہ سال 75,000 ٹن آم برآمد کیا گیا تھا۔ رواں سیزن میں 1 لاکھ ٹن آم کی برآمد سے ملک کو $8 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں معروف فلاحی ادارے پینی اپیل کی جانب سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجنڈری کرکٹر انضمام الحق اور مشتاق نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں معروف فلاحی ادارے کی جانب سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجنڈز کرکٹرز انضمام الحق اور مشتاق احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ فلاحی تنظیم کے تحت ہونے والے اس ڈنر میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈنر میں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے آٹوگراف شدہ بلے، شرٹس اور گیندوں کی نیلامی کی گئی، جبکہ ڈنر کے شرکاء نے فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر انضمام الحق اور مشتاق احمد نے اسٹیج پر اسلام کی تبلیغ بھی کی اور کرکٹ کے قصے سنا کر حاضرین کو محظوظ بھی کیا۔ قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ، مرنے کی تیاری میں لگ جاؤ، you will have not worried۔ آج ہم اگر مرنے کی بات کرتے ہیں، when we are trying to tell somebody we're gonna die، وہ کہتے ہیں منحوس باتیں کیوں کرتے ہو؟ This is not time for die۔ This is the biggest reality۔ It doesn't matter if you're atheist, you don't believe on creator, it doesn't matter whatever religion you are from۔ But let me tell you one thing, the biggest reality, we have to face this۔ And where are we gonna go? Have we prepared for that journey؟ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، جس ٹائم ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، ان کی اللہ سے توقعات اور بڑھ جاتی ہیں۔ میرے بندوں کے لیے کام کرے، میرے بندوں کی ہیلپ کرے، تو اس کے سلسلے میں میں بھی یہاں آیا ہوں، تو یہ میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے بلایا۔ اور بھی کوئی دوسرا آ سکتا تھا، تو پہلے تو ساروں سے چیز، اور دوسری 92 ورلڈ کپ کی بات کی، تو 92 میں صحیح بات بتاؤں نا، جو ینگسٹرز تھے نا، ان پہ ہمیشہ پریشر تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بہت سارے سینئر تھے، سارا پریشر ان کے اوپر تھا، تو میں نے کوشش کی کہ 2019 کی بھی ٹیم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کروں جن پہ پریشر کم ہو۔ شرکاء نے پینی اپیل کے یتیم خانہ بنانے کے اقدام کو خوب سراہا اور کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کو ایسے نیک اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ دیکھیں جی، آج میں سمجھتا ہوں جی کہ یہاں پہ آج جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ایک نیک کام کے لیے، اور میں سمجھ جو ہمارے لیجنڈز جو ہیں، اور پینی اپیل کے ساتھ مل کے پاک سلوشنز، ہمارے TKC کے ساتھ مل جل کر ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ اب بڑا کامیابی یہ ایونٹ ہوا ہے۔ انضمام الحق، مشتاق
जितने हमारे लेजेंड्स हैं उन्होंने यहाँ से बढ़ चढ़ के हिस्सा भी मज़ीद इदारे कायम करने हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी पूरी कम्युनिटी जो है, जो कि सबसे देने वाली कम्युनिटी है, वो बढ़ चढ़ के वो इन्होंने हिस्सा लिया और इसको आज लाखों के ज़्यादा तादाद पे आज पैसे हमारे इकट्ठे हुए हैं. The event was very well and it went successfully. Different people came and we met a lot of different people, so it was really successful. Penny Appeal is a charity organisation that is in 30 crisis-hit countries in Middle East, Africa and Asia, and some of the things that we work on and what we were fundraising about today was orphan homes and orphan sponsorship. So that was the main projects today, but we also do work in the UK with the homeless, and we also work on thirst relief as well. The special thing is that it's very inclusive. It has a broad range of opportunities. Like it works in 30 countries across Africa and Asia, and they have different projects, for example for women, for orphanages, Ramadan, they have Nasheeda calls. मुंतज़मीन ने डिनर की टेबल फ़रोख्त करने के लिए वकार यूनिस और रमीज़ राजा की आमद का भी ऐलान किया, मगर उनकी अदम मौजूदगी पर हाज़रीन ने नाराज़गी का इजहार किया. गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन. वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की ई पिटीशन का जायज़ा लेने के लिए एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से जय्यद उलमा कराम और मशाइख के अज़ाम ने शिरकत की है. अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी. वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास की सदारत तंजीम के चेयरमैन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने की. इस मौके पर चेयरमैन वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन ने तमाम उम्मत मुस्लिमा पर जोर देते हुए कहा कि इस वक्त ई पिटीशन पर सिर्फ 10,000 दस्तखत हुए हैं, जबकि बरतानिया की पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने के लिए 1 लाख से ज़ायद दस्तखतों की ज़रूरत है और ई पिटीशन की आखिरी तारीख 10 जुलाई है. इस मौके पर उलमा इकराम का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान का हिस्सा है और ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आईनी तरीके से निमटने के लिए कोशाना हो, ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह न किया जा सके. कि नामूस रिसालत के हवाले से ये पटिशन जो बड़ी मेहनत के बाद हमने जमा करवाई है और इसकी डेडलाइन है 10 जुलाई. उससे पहले 1 लाख हमने पूरी करनी है. अभी तक 10,100 कुछ हदफ जो है वो पूरा हुआ है. तो तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस पटिशन को साइन करें और आगे जहाँ तक आपके राब्ते हों उनसे भी राब्ते करके उनसे भी साइन करवाएं. यही हमारी गुजारिश है. आप तमाम मुसलमानों से जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे इस पैगाम को आगे फैलाएं. नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बाइज़्ज़त इंसान का बुनियादी फरीज़ा है. वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन किसी को गाली देने और किसी के ख़िलाफ़ इंसल्ट करने के ख़िलाफ़ इसी मूवमेंट को हम यूरोप में फैलाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर हमारा तकाज़ा ये है कि हमारे आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी जो इंतहा पसंद लोग करते हैं वो बंद करें. उसके लिए हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है. एक पटिशन पार्लियामेंट में दायर कर दी गई है, एक्सेप्ट हो चुकी है. उसमें हमारे तमाम ब्रिटिश सिटीज़न तेज़ी के साथ पटिशन साइन कर रहे हैं. डेडलाइन 10 जुलाई है. मैं तमाम बरतानवी शहरियों से गुजारिश करूंगा, ख़वातीन से, जो भी यहाँ बसने वाले हैं, कि ये जो अमन और सलामती की मूवमेंट और तहरीक है, जिसमें ख़ास तौर पर हम मुसलमान चाहते हैं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हरगिज़ ना की जाए. In relation to a petition which has been lodged to the British Parliament to respect the honor of all prophets, in particular the honor of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have until the 10th of July, Thursday, 12 a.m. to complete this petition and reach the target of at least 100,000 signatories in order for this to be lodged as a formal debate in Parliament. For that, at the moment, we are at 10,000 approximately, and we need 90,000 further to reach our target. Our request is and urge is for all Muslim brothers and sisters across the UK, wherever they can hear our voice, to straight away sign this petition, lodge their signature
in honor and respect of our beloved Master Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उनका मजीद कहना था कि उनका मकसद उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब सब मिलकर पिटीशन की आखिरी डेडलाइन 10 जुलाई से पहले 1 लाख के दस्तखतों का टारगेट पूरा न कर लें। आखिर में चेयरमैन वर्ल्ड मुस्लिम फोरम पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने तमाम उलमाए किराम और मशाइख को अपने फरूई इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए 10 जुलाई से पहले ई पिटीशन पर दस्तखत के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में मुल्क भर से नौमुंतखब पाकिस्तानी नयाद मेयर्स और काउंसलर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने टेलीफोन खिताब करते हुए तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम में मुनाकिदा प्रोग्राम की सदारत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के सदर राजा इसहाक साबिर और साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल चौधरी मोहम्मद खान ने मुश्तरका तौर पर की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम, मेयर ऑफ हाई वेकम मुजम्मिल हुसैन, मेयर ऑफ लूटन ताहिर मलिक और मेयर ऑफ वोस्टर चौधरी अल्लाह दिता थे। इस मौके पर साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने टेलीफोन खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के हवाले से बरतानिया का अहम रोल है जिसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे अकबर साहब, हमारे सारे अहबाब यहाँ मौजूद है इतनी बड़ी तादाद में, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद सफर में हूँ इस वक्त दरिया शरीफ से वापस आ रहा हूँ। सिग्नल भी बहुत वीक होते हैं। एक तरफ सी पैक की वजह से इस खिते की सारी एशियाई इकॉनमी और सारी दुनिया के अंदर एक उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। सरदार अतीक का कहना था कि जनूबी एशिया में अमन का रास्ता मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। भारत और पाकिस्तान दोनों जोहरी ताकतें हैं जबकि कश्मीर एक आतिशफशां है। इस मौके पर चौधरी फाजिल, काउंसलर वहीद अकबर, साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह, काउंसलर राजा ज़िया, सुमेरा फर्रुख, काउंसलर खदीजा मलिक, काउंसलर उबैदा अहमद, काउंसलर हाजरा बशीर, काउंसलर सुआका नसीम और दीगर ने खिताब करते हुए मसला कश्मीर को इंसानी बुनियादों पर बरतानिया के आला ईवानों में उजागर करने का आज़म किया। तकरीब के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीब का मकसद मुंतखब काउंसलर्स को ये बताना था कि वो बरतानवी ईवानों में हमारे नुमाइंदे हैं जहां वो मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी तक आखिरी दिन तक ये कश्मीर के लिए वो जदोजहद जारी रखेगी और इंशाअल्लाह एक दिन वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को आज़ाद कराकर सांस लेगी। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यूके की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी इतना कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद करने पर, और ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ ख़वातीन काउंसलर्स की जो आमद है वो बहुत खुशाइंद है और उनका वादा तहरीक कश्मीर के साथ कि आइंदा आने वाले टाइम में वो इसी मजबूती के साथ हमारे शाना बशाना खड़ी रहेंगी, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। It's very daunting to even stand up and speak in front of so many men. We need support from our fellow colleagues and the community to bring their families forward so they can come here. And how do you want to educate them? Educate तो ऐसे ही करेंगे ना जब हम लोग भी अपने बच्चे लेकर आएंगे साथ और कहेंगे देखें हम लोग कश्मीर कोर्स के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं, तो बाहर आएंगे फैमिलीज लेकर आएंगे तो हम लोग आगे चल सकते हैं ना। हमारा मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि मसला कश्मीर को हल करे जो कि हल तलब है, और ये जो आलमी ताकतें हैं इनका भी फ़र्ज़ है कि मसला कश्मीर को हल करने में अपना असर इस्तेमाल करें, कश्मीरियों का हक जो है वो दिलवाया जाए। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज बरतानिया भर में क्रॉस द पार्टी जितने भी नए काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर्स मुंतखब हुए हैं उनको दावत दी है और मसला कश्मीर के हवाले से बात की है कि वे फारवर्ड इसके हवाले में आप हमें बताएं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपके साथ कैसे तावन करे और मसला कश्मीर के लिए जो काउंसलर्स हैं उन्होंने अपना क्या रोल अदा करना है, उस हवाले से ये बर्मिंघम में हमने ये मीटिंग अरेंज की थी और माशाअल्लाह बरतानिया भर के मेयर, डिप्टी मेयर्स और काउंसलर्स यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका मेन थीम कश्मीर के बारे में था कि जिन लोगों ने कश्मीर के बारे में काम किया और आइंदा इसके किस तरह हमने इसको आगे बढ़ाना। तो इसमें मैंने और बाकी दोस्तों ने भी सजेशन यही दिया कि यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, यहाँ के ब्रिटिश जो लड़के लड़कियाँ चाहे लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करके और तमाम जमातें एक पॉइंट पे इकट्ठे होकर
सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मूवमेंट है उस वन पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठे होकर हम अपनी इस तहरीक को मज़ीद ताकत के साथ ज़्यादा तरीके से इफेक्टिव कर सकते हैं। जो मसला कश्मीर है उस पे एक जो फेलियर्स हुए हैं उनका भी एनालाइज करें और देखें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और फिर यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझते हुए अपनी अप्रोच को दुरुस्त करें ताकि हमें बेहतर रिजल्ट्स मिले। और उसके अलावा हमारी जो तमाम कम्यूनिटीज़ हैं और स्पेशली जो यूथ है उसको इंगेज करने के लिए हम हर अपना वालदैन, कम्यूनिटी लीडर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ये मिलकर उनको इंगेज करें ताकि ये हमारी कैंपेन और ये मोमेंटम चलता रहे। हम तवक्का रखते हैं कि ये काविश आगे और तक़वियत हासिल करेगी और कश्मीर का मसला एक प्रायोरिटी के तौर पर बरतानिया की पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा और उस सिलसिले में ये अपनी काविशों को मज़ीद इस्तवार करेंगे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद भी शरीक थी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान और मलाइशिया का दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। 8 जुलाई को कुआलालंपुर में पाकिस्तान मलाइशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलाइशिया और पाकिस्तान के माबैन बाहमी तजारत, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में ताउन के फरोग के लिए 8 जुलाई को पाकिस्तान मलाइशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और 32वीं सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की तकरीबात का आगाज हो रहा है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, माट्रेड और मेडा मलाइशिया के इश्तराक से मुनक्किद की जाने वाली इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में मलाइशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड के चेयरमैन चौधरी नदीम रौफ ने कुआलालंपुर में 92 न्यूज़ को कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया। इन्होंने कहा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलक शाहिद सलीम की क़यादत में पाकिस्तान के मारूफ सनतकारों, ताजरों और सरमायाकारों को 300 रुकनी वक्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान मलाइशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और शख्सियात के माबैन बाहमी तजारत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत होंगे, जिसमें बाहमी तजारत के हुजम में इजाफा होगा और पाकिस्तानी मसनूआत को जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक की मंडियों में मुतारिफ कराने की राह हमवार होगी। ये 32वां हमारा अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है जो कि इस दफ़ा हम कुआलालंपुर मलेशिया में करने जा रहे हैं। इसमें जो ख़ास बात है और जो हमारे लिए एक ऑनर की बात है बीइंग एज अ पाकिस्तानी के डॉक्टर महातीर मोहम्मद साहब चीफ गेस्ट हैं इस इवेंट नाइट के, जो कि डेफिनेटली उस चीज़ की तक़वियत देता है कि जिसमें कि इमरान खान साहब और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दरमियान जो रवाबित हुए हैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, इकॉनमी की और मज़ीद फ्लरिश होगी और इसमें जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेगा, मज़ीद मुआहदे होंगे और इस हमारे इवेंट के दौरान तकरीबन 4 से 5 बहुत अच्छे MOU साइन होने की तवक्को है, जिसको कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद जान रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद मारूफ कारोबारी इदारों और शख्सियात को अलग कारकर्दगी की बुनियाद पर अचीवमेंट अवार्ड देंगे। कुवैत में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के ज़रिए तमाम फलों के बादशाह आम की नुमाइश के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की अफराद के अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की इस रिपोर्ट में। कुवैत में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर और सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 5वीं सालाना पाकिस्तानी मैंगोज फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सुफरा, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत के डायरेक्टर रुकन पंजाब असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तानी आम की दुनिया भर की तरह कुवैत में भी बहुत मांग है। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि दीगर मसनूआत के साथ साथ पाकिस्तानी फलों को भी बेहतर अंदाज में फरोग दिया जाए। इस मौके पर शरका ने मीडिया से बात करते हुए कुवैत में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड को बेहद सराहा। ये हमारा 5वां मैंगो फेस्टिवल है ज़हरा जमिया में। ये कुवैत की सबसे बड़ी जमिया है और यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे हो गए हमें मैंगो को बांटते हुए। तकरीबन 10 मुल्कों के सफ़ीर आए हैं और 20 लोकल मीडिया के लोग आए हैं, जिसमें अखबार के, टेलीविज़न के, रेडियो के और पाकिस्तानी मीडिया की तादाद भी तकरीबन 25 से ज़्यादा। तो अल्लाह का फजल करम है कि सारी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तमाम अहबाब का, तमाम मीडिया वालों का, तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस कामयाब फेस्टिवल में अपना हिस्सा डाला। और जो कुवैती कम्युनिटी है, अरब हैं, नॉन पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने इसको एंजॉय किया है और हमने कोशिश की है कि हर एक को एक एक मैंगो पैक दिया जाए और तकरीबन 700 हमने पैकेट जो हैं वो छोटे तकसीम किए हैं और
अगर मैं कहूँ तो टोटल हमने 1.5 टन माल जो है लोगों को फ्री दिया आज, उसकी ब्रांडिंग की हुई थी। कुवैत की सरजमीन पे मैंगो जो है वो बादशाही कर रहा है, राज कर रहा है अपना। We are welcoming for the 5th time of the activity of the festival of Pakistani mango, and this is very small example. It shows that the qualification of the Pakistani products and how much the Kuwait society are very close, and how the taste of the Pakistani mango and Pakistani products. We taste the best mango in the world, the Pakistani mango, and thank you for everything and the hospitality of your kindness and good Pakistani people. नुमाइश में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा गैर मुल्कियों ख़ुसूसन कोईती अफराद भी मौजूद थे जो पाकिस्तानी आम के जायके और खुशबू के दीवाने निकले। दुबई में पाकिस्तानी एसोसिएशन की जानिब से अदबी मुशायरा अंदाज़े बयां और का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें वसीम शाह समेत नामवर शोरा कराम शिरकत कर रहे हैं। शोरा के एजाज़ में एक अशाया भी दिया गया, जिसका अहवाल हमें बताएंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद। दुबई में पाकिस्तान एसोसिएशन ने आज शाम मुशायरे का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान और भारत से नामवर शोरा शिरकत कर रहे हैं, जबकि इस मुशायरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत भारतीय अपनी अपनी फैमिलीज के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मुशायरे से कबल इन शोरा के एजाज में अदबी तंजीम बज़्म उर्दू की जानिब से शानदार डिनर का एहतमाम किया गया। खाने की मेज भी शायरी का स्टेज बन गई। इस दावत में पाकिस्तान और भारत के नामवर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मौजूद मुशायरे के मेजबान शाजिया सदवाई और रेहान सदीकी समेत मेहमान शोरा का कहना था वो इस मुशायरे में शिरकत करके बहुत खुश हैं। इन्हें उम्मीद है कि इनका कलाम शुरा को पसंद आए। इस किस्म के महफिलों से दोनों मुमालिक के दरमियान दूरी कम करने में मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से दुबई में इस वक्त जो सूरत हाल उर्दू की है, मुझे तो काफ़ी इसमें अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। जिस हिसाब से जो प्रोग्राम्स उर्दू के हो रहे हैं और जिस हिसाब से उन प्रोग्राम्स में सामाइन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारे तो माशाल्लाह से बज़्म उर्दू के जितने भी प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह से हाउसफुल होते हैं। काम हमें करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। जदीद शायरी की हम बात कर रहे हैं और वो ऐसे शायर जिन्होंने एक साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया है, सब पाकिस्तान से हैं। हमारे सारे शोरा पाकिस्तान से आ रहे हैं और उन्होंने ख़ास तौर से ये वो शोरा हैं जिन्होंने एक दुबई वाले प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं पड़ा है, तो हमारी तरफ से ये मौका होगा कि उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। मेहमान शोरा का ये भी कहना था प्रोग्राम में ज़ौक़ वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। उर्दू जुबान वो दौड़ है जो पाकिस्तान और भारत को जोड़ती है। हमारा काम मोहब्बत बांटना है। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि ये एक अपनी नौइयत का बिल्कुल मुख्तलिफ मुशायरा होने जा रहा है। इसमें तमाम नई नस्ल के शोरा मौजूद हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि नई नस्ल आ गई है अदब में, और ये यकीनन बड़ा खुश आइंद है, इसलिए कि जब नए लोग आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिलसिला रुका नहीं है बल्कि सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ रहा है। मुशायरा जब होगा तो यहाँ दुबई के लोग बहुत उम्दा शायरी सुनने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ नई नस्ल के शोरा ही नहीं हैं बल्कि ये बहुत उम्दा शेर कहने वाले लोग हैं। हम इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि उस शाम में इन सारे मोतियों को पिरोने की जो लड़ी का काम करना है, उन्हें लड़ी बनाना है, तो वो धागे का काम हम करेंगे। तो निज़ामत हमारी है, हमें बहुत खुशी है। दुबई में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उर्दू पर, और जो पाकिस्तान से और इंडिया से मुख्तलिफ मुल्कों से जो शायर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहने वाले उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बड़ा वेलकम करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। इससे उर्दू को अच्छी प्रमोशन मिल रही है और इंशाल्लाह डे बाई डे उर्दू पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी ज़्यादा प्रमोट होगी, और यही मेन मकसद है कि पूरी दुनिया में उर्दू का नाम रोशन किया जाए। बज़्म उर्दू की सपोर्ट उस हर शख्स और उस हर तंजीम को हासिल है जो कि उर्दू के हवाले से कुछ भी खिदमत कर रही है, चाहे वो शाजिया हो, चाहे रेहान साहब हो, चाहे हमारी हो, चाहे कोई और तंजीम हो। जो शोरा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक कहने वाले हैं, तो हम अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में सुनने वालों को लेके जाएंगे जो ज़ौक़ रखते हैं ज़बान का और शायरी का, और हमारी तरफ से अंदाज़े बयां और शाजिया क़िदवई और रेहान सिद्दीकी साहब को पूरा ताउन है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तकरीब में मेहमान शोरा के तोहफ़े भी दिए गए। तकरीब की मेजबानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाली तरन्नुम ने मेहमानों को शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि आज शाम 7 बजे हाज़रीन शोरा के कलाम से जरूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तकरीब के आखिर में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों में यकसा मकबूल 92 को बेहतरीन सहाफ़त और कवरेज करने पर बज़्म उर्दू की जानिब से ख़ुसूसी तारीफ़ी इसनाद से नवाजा गया। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम आज अपना 243वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सैल्यूट टू अमेरिका का तकरीब में फ़ौजी क़ुव्वत का भी भरपूर मुज़ाहरा किया। इस रिपोर्ट में देखिए।
4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी मुल्क भर में जश्न मनाने का सिलसिला शुरू। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब वाशिंगटन में मनाई जाएगी। व्हाइट हाउस के सामने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सैल्यूट टू अमेरिका परेड का एहतमाम किया गया है, जिसमें अस्करी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। ब्लू एंजल्स और सदारती तैयारा एयरफोर्स 1 फ्लाई पास्ट करेंगे। उसके साथ ही टैंक और अस्करी साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। करोड़ों डॉलर की लागत से होने वाली सैल्यूट टू अमेरिका तकरीब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि सदर ट्रंप उसे अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अखराजात के बारे में अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि दिन की अहमियत को देखते हुए उस पर किया जाने वाला खर्च बहुत ही कम है। जश्न आज़ादी के हवाले से मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम अहम और सरकारी इमारतों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। इटली के जजीरे स्ट्रोम्बोली में आतिशफशा पहाड़ फट पड़े। भड़कते लावे की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। इलाके में मौजूद सियाहों और मकामी आबादी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इटली के मारूफ सियाहती जजीरे स्ट्रोम्बोली में क़यामत टूट पड़ी। आतिशफशां पहाड़ खौफनाक धमाके से फट पड़ा, जिसके साथ ही फजा में हर सू धुएं और राख का ढेर छा गया। जिस वक्त आतिशफशां फटा तब सयाहों की बड़ी तादाद जजीरे पर मौजूद थी, जिनमें से 30 ने अपनी जानें बचाने के लिए समुंदर में छलांगे लगा दी। जजीरे में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तालिबी हुकाम ने नेवी की खिदमात हासिल की, जिन्होंने वहां मौजूद 70 से ज्यादा सयाहों को बहिफाजत निकाला। आतिशफशां से लावा उगलने का सिलसिला जारी है। पहाड़ से वक्फे से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। स्ट्रोम्बोली के इस आतिशफशां का शुमार दुनिया के मुतहर्रिक तरीन पहाड़ों में होता है, जो 1932 से लेकर अब तक मुसलसल लावा उगलता चला आ रहा है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़ UK।